Hello students, welcome everyone. So class 10th students, we are continuing with the chapter triangles. In our last class, we discussed the concept of the areas of the similar triangles, and the property is the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratios of their corresponding sides. And after the proof of this theorem, we discuss some questions based on this property, based on these theorems. So in this class also we will continue with this topic. इसी टॉपिक के साथ, इसी थ्योरम के साथ कंटिन्यू करते हैं कि एरियाज के कॉन्सेप्ट सिमिलर ट्राइंगल्स में और कैसे और किस तरीके से पूछे जाते हैं. So write the question first of the today class. If D, E and F are midpoints, if D, E and F are midpoints of sides AB, BC and AC respectively. DE and F are midpoints of sides AB, BC and AC respectively. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. ये है आपके क्वेश्चन का स्टेटमेंट in which it is given as DE and F are midpoints of sides AB, BC and AC respectively. DE and F are the midpoints of sides AB, BC and AC, AB, BC and AC of a triangle ABC respectively. Of a triangle ABC. ये आपको बीच में ऐड करना है वर्ड AB, BC and AC of a triangle ABC respectively. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट? That if we have any triangle that is the named as triangle ABC, AB midpoint is D, BC midpoint is E and AC midpoint is F. So when we will join the midpoints D, E and F of these sides of triangle AB, BC and AC respectively, so that the triangle formed is DE and F, triangle DEF, and we have to find the ratio of the DEF with the triangle ABC. So from our 9th class, the property that we have studied, that if the line segment joining the midpoints of the two sides of triangle, the line segment joining the midpoints of any two sides of triangle, then it is parallel to the third side and it is equal to the half of the third side. बीपीटी भी मैंने आपको इस थ्योरम के लिए, इस कंडीशंस के लिए प्रूफ करवाया था, जिसमें आपके दो साइड्स के मिड पॉइंट होते हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो बीपीटी में तो आपने रेशियो को इक्वल करके कन्वर्स ऑफ बीपीटी से वो प्रॉपर्टी यूज कर लिया था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि डीईएफ का एबीसी के एरिया से रेशियो कैलकुलेट करना है, और अपना डिस्कशन क्या हुआ था that whenever we have to find the ratio of the areas of the two triangles, the 2 points that we have to follow first, either first prove that these two triangles pair are similar and then apply the theorem number 6.6, or if it is not possible to prove two triangles similar, then we will go for the half into base into height. तो यहाँ पे जो पहले प्रॉपर्टी यूज करना होगा वो आपका होगा मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम्स के ही कंडीशंस में आपको ये बताया जाता है क्या कि if a line segment joining the midpoints of any two sides of triangle, then it is always parallel to the third side and it is equal to the third side. तो यहाँ पे parallel to third sides की जरूरत तो नहीं है, यहाँ पे equal to third sides के रिलेशन से मैं यूज कर रहा हूं. तो देखिए कैसे सॉल्यूशन के अंदर इन ट्राइंगल एबीसी में D and E are since D and E are midpoints of sides
D and E are midpoints of sides AB and BC respectively. दो साइड्स के आपने मिड पॉइंट्स बता दिए रेस्पेक्टिवली। तो जब ये दोनों साइड्स के मिड पॉइंट है आपके पास में, तो इसका मतलब क्या होता है, डी और ई अगर मिड पॉइंट है ए बी और बी सी के, तो इसका मतलब देयरफॉर डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। जब भी ट्राइंगल्स के दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड। सो आई एम राइटिंग हियर डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाय द विच प्रॉपर्टी, by the application of mid point theorem। ध्यान रखिएगा ये 9th क्लास का प्रॉपर्टी है, 10th का नहीं है। मिड पॉइंट थ्योरम जो 9th क्लास में आपको स्टडी करवाया जाता है, एमपीटी जिसको आप बोलते हैं। सो अगर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ DE एंड BC? DE and BC ratio is 1/2 and that is the equation number 1. Similarly, by this concept, if we write D और E अगर मिड पॉइंट्स है, तो उसी तरीके से E और F भी मिड पॉइंट है। So we can write similarly EF is equal to half of, EF जो है वो क्या होगा, half of AB होगा। EF is half of AB, that means the ratio of the EF and AB is again 1/2, equation number 2. And one more midpoints property, that is D and F. So we can write DF is equal to half of BC. If DF is equal to half of BC, then again, if we will go for the ratio, DF and BC ratio is 1/2 from equation number 3. So in equation 1, equation 2 and equation 3, what we can observe, that in all three equations, the ratios of their respective sides are as 1/2, 1/2, 1/2. So what we will write here, from equation 1, equation 2 and equation 3, equation 1, equation 2 और equation 3 से जब तीनों ratios आपके 1/2 के equal है, so what we can write, we can write DE upon BC is equal to EF upon AB is equal to DF upon BC. So if the ratios of the three corresponding sides are equal, if in two triangles, because one triangle pair is DEF, another triangle pair is ABC, and if the ratios of the three corresponding sides are equal, if the ratios of the three corresponding sides are equal, that means the both triangles pair are similar to each other. The both of the triangles pair are similar to each other. So that implies the triangle DEF is similar to. Now if you will write the name of DEF similar to ABC, that will be the incorrect, क्योंकि उसका सिंपल सा रीजन है कि DEF में क्लियर पता चल रहा है कि DE के कॉरेस्पॉन्डेंस अगर BC साइड है, सो DEF में DE के कॉरेस्पॉन्डेंस वी कैन नॉट राइट द साइड ABC AB पार्ट। DEF में DE के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन से साइड्स का वैल्यू यूज कर रहे हैं अपने, सॉरी गलत लिखा है आपने, थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं बेटा। D and E, DEF are the midpoints of sides AB, BC and AC अगर आपको दे रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना होगा। DE is equal to half of AC काम आएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा। DE जो है D और E मिड पॉइंट है ना, that will be parallel and equal to half of, तो वो AC से कंपेयर होगा बेटा। DE अपॉन AC जो है वो आपका 1/2, बाकी सब सही है। DE अपॉन AC, EF के साथ चेक कीजिए AB का रिलेशन करेक्ट है और DF के साथ BC का रिलेशन करेक्ट है। अब ये करेक्ट हुआ है, तो देखिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि DEF के साथ सिमिलर ABC नहीं होगा। अच्छा, DEF के साथ सिमिलर ABC क्यों नहीं होगा, क्योंकि DE के साथ रेशियो AC है, तो रेशियो AC है, तो उसमें मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी बताए थे कि B वर्टेक्स B तो लास्ट में आएगा, ये कंफर्म है। अब AC में या तो ACB होता है और या AC को लिखने का तरीका CAB होता है। अब दोनों में से कौन सा वैलिड है, नहीं है, दोनों के लिए एक बार चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन CAB भी है और ऑप्शन ACB भी है, तीनों रेशियो को कॉरेस्पॉन्डेंस चेक कर लो कि कौन सा फॉलो कर रहा है। अगर ये नेमिंग है तो DE के साथ AC या CA अभी तो दोनों ही वैलिड है। उसके बाद EF के साथ है AB, EF सेकंड और थर्ड, तो कॉरेस्पॉन्डेंस EF
कॉरेस्पॉन्डेंस EF AB ये है CB, इसका मतलब ये वैलिड नहीं है. सो व्हाट इज द करेक्ट ट्राइंगल नेम? DEF is similar to triangle CAB by which property? SSS, by the property of SSS similarity criteria. And as far as will be proved the two triangles pair are similar to each other, to find their ratios we can write therefore area triangle DEF ratio with area triangle CAB. देखिए जब आप ट्राइंगल्स में रेशियोज के नेम लिखते हैं ना, तब आप CAB, ACB, BCA, BAC नॉट प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. बट व्हेन वी राइट द सिमिलर नेम तो वहां पे कंडीशंस कॉरेस्पॉन्डेंस को फॉलो करना जरूरी है. उसका रीजन ये है कि जब आप DEF और CAB का रेशियो भी अगर कैलकुलेट करोगे ना, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के ही इक्वल रिप्रेजेंट होता है. तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के अगर स्क्वायर के रेशियो के अगर रिप्रेजेंट होगा तो इसका मतलब आपको DE के साथ CA या AC आप जो भी बोलते हैं इसके स्क्वायर के आपको इक्वल पुट करना पड़ेगा. तो DE अपॉन AC का होल स्क्वायर. तो रिक्वायर्ड रेशियो अगर आपको निकालना है तो DE और AC में क्या रिलेशन है? DE अपॉन AC कितना वैल्यू है? DE अपॉन AC 1/2. सो दैट इज 1/2 होल स्क्वायर. कहां से वैल्यू पुट किया? फ्रॉम इक्वेशन 1. तो DE और AC का वैल्यू 1/2 हो गया, 1/2 का वैल्यू 1/4 हो गया. तो आपको रेशियो फॉर्म निकालना है. तो रेशियो फॉर्म का मतलब क्या हुआ? हैज एरिया ट्राइंगल DEF रेशियो विद एरिया ट्राइंगल CAB. CAB, ABC, BCA जब सिर्फ ट्राइंगल का नेम है तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस नेम है तो आपको सीक्वेंस उसी तरीके से फॉलो करना है. सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड आंसर? रिक्वायर्ड आंसर रेशियो इज 1/4. तो ये है आपका प्रॉपर्टी जिसमें आपने सिमिलर ट्राइंगल के एरिया के कॉन्सेप्ट को भी यूज किया है और उसके साथ साथ क्लास 9 के मिड पॉइंट थ्योरम प्रॉपर्टी को. क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में आपके 3 साइड्स के मिड पॉइंट गिवन थे. मिड पॉइंट थ्योरम प्रॉपर्टी का रिलेशन यूज करके दोनों ट्राइंगल्स पेयर जिनका एरिया निकालना था उनको पहले आपने सिमिलर प्रूफ किया. सिमिलर प्रूफ करने के बाद में ट्राइंगल के एरिया के रेशियोज प्रॉपर्टी को अप्लाई किया और ट्राइंगल के एरिया के रेशियो प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने के बाद में आपका रिक्वायर्ड आंसर दैट इज द 1/4. कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो भी ट्राइंगल्स बनता है, ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट, ट्राइंगल्स के 3 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनता है दैट एरिया इज ऑलवेज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ द होल ट्राइंगल. उस ट्राइंगल का एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया का 1/4 होता है. लिखिए सेकंड क्वेश्चन. प्रूव दैट the area of an equilateral triangle described on one side of a square, area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half of the. Prove that the area of equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half of the area of an equilateral triangle is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal. तो फिर से एक एरिया में रिलेशन आपको प्रूफ करना है और वो आपकी कंडीशंस ये है. क्या है क्वेश्चन का स्टेटमेंट? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर. वन साइड क्यों लिखा है? क्योंकि स्क्वायर्स के अंदर 4 साइड्स इक्वल होते हैं. तो स्क्वायर्स के किसी भी एक साइड पे आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो सिंपल सी बात है कि स्क्वायर के साइड पे जब इक्विलेटरल ट्राइंगल आप कंसिडर कर रहे हैं दैट मींस
that the side of the equilateral triangle and the side of the square will be the same. कंफर्म है ये बात, क्योंकि इक्विलेटरल मतलब all sides are equal और वो स्क्वायर की किसी साइड पे बन रहा है, that means the side of square and the side of the equilateral triangle will be the equal. And the second relation is the equal to the, इस एरिया को आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. फिर से इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के हाफ के इक्वल प्रूफ करना है, एंड दैट डिस्क्राइब्ड ऑन one of its diagonal. Why it is written as one of its diagonal? Because in square both diagonals are equal. In square both of the diagonals are equal. So with respect to any one of its diagonal, we have to describe one more equilateral triangle, and this relations we have to prove that the area of equilateral triangle on the side is a half of the area of equilateral triangle that is on the diagonal. So first represent this statement with the expression. पहले इसको फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं. Let consider a square ABCD. तो आपको स्क्वायर ABCD है जिसका कुछ न कुछ साइड आपको लेट करना होगा. So let first consider with any one of its sides. So let's observe here, with any one of its sides we considered an equilateral triangle. Equilateral triangle, that means all these three sides are equal. So sides of the square will be equal to the sides of the equilateral triangle. Now another equilateral triangle that we have to describe on one of its diagonal. जो दूसरा आपका equilateral triangle है वो described होगा किस पे? Another equilateral triangle is described on one of its diagonal. तो diagonal आपने कौन सा ज्वाइन कर दिया? AC. अच्छा, कई स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल ADC है. दिस वन इज नॉट द इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये इक्विलेटरल हो ही नहीं सकता. क्यों? क्योंकि डायगोनल कभी साइड्स के इक्वल होता है क्या? डायगोनल्स कैन नॉट बी इक्वल टू द साइड्स ऑफ द स्क्वायर. तो यहाँ पे ये डायगोनल मैंने ज्वाइन किया. अब जितना लेंथ ऑफ डायगोनल है उस लेंथ ऑफ डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डेंस इक्विलेटरल ट्राइंगल्स जो कि इस साइड में बाहर के साइड में बनाते हैं. तो कुछ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से, ये एक रफ फिगर है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा. तो इस तरीके से अपने को कंसीडर करना पड़ेगा, मानना होगा दैट दिस वन इज अ पॉइंट Q. ये आपका पॉइंट Q है और इस पॉइंट D को थोड़ा सा अंदर की तरफ रिप्रेजेंट कर देते हैं. दिस वन इज द पॉइंट D. तो ये है आपका फिगर जिसमें ABCD आपका स्क्वायर है. ABCD स्क्वायर के साइड AB पे वन ऑफ इट्स साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल इज APB एंड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज AQC. आपको APB और AQC का जो एरिया है वो रिजल्ट प्रूफ करना है. क्या? दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर. जो स्क्वायर के साइड पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया हाफ होगा किसका? इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. तो इसमें टू प्रूफ मैं वो जरूर लिखता हूं कि प्रूफ क्या करना है. तो टू प्रूफ के अंदर फिगर ड्रॉ करने के बाद में आपको ये प्रूफ करना है क्या? एरिया ट्राइंगल APB. जो APB का एरिया है व्हाट वी हैव टू प्रूव? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ AQC. APB और AQC के एरिया में ये रिलेशन आपको प्रूफ करना. क्लियर? सो फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन मतलब प्रूफ के अंदर क्या करेंगे? प्रूफ करके लिखते हैं टू प्रूफ. और अब जो रिजल्ट प्रूफ करना है तो प्रूफ में सबसे पहले ये लेट करते हैं, लेट ABCD be a square, that ABCD be a square of side is equal to A unit. ABCD कोई स्क्वायर है जिसका साइड आपने क्या लेट कर लिया? A यूनिट लेट कर लिया. अच्छा, एक बात बताइए, स्क्वायर का साइड अगर A यूनिट है तो आपको ये तो पता है कि यहाँ पे राइट एंगल बनता है. स्क्वायर्स के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे राइट एंगल है. तो AB आपका A यूनिट है, BC भी अगर आपका ये यूनिट है, so can we find the hypotenuse by using the Pythagoras property, that is the diagonal of the square. So let ABCD by square of side A unit in triangle. उसके बाद आपने अगर स्क्वायर का साइड A यूनिट लेट किया है तो in triangle ABC by Pythagoras theorem. तो पाइथागोरस थ्योरम वैसे आप बेसिकली यूज करना तो जानते ही हैं. इन ट्राइंगल ABC में अगर पाइथागोरस से AC निकालता हूं तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन क्या होगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर.
सो ए सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर रूट लगा दिया, सो ए सी इज इक्वल टू रूट 2a। तो ए सी जो है राइट एंगल के लिए तो हाइपोटेनियस हो गया, बट फॉर स्क्वायर डायगोनल हो गया। सो दैट मीन्स लेंथ ऑफ डायगोनल, जो डायगोनल है वो आपका AC ही है, तो जो लेंथ ऑफ डायगोनल AC जिस पे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है वो आपका हो गया √2a। लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू √2a। अच्छा, इस क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास में आपने क्वेश्चन प्रूफ किया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एरिया में एक रिलेशन प्रूफ किया था, तो मैंने आपको समझाई थी ये बात क्या, दैट द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए अगर आप वर्क करते हो, सो दीज इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर टू ईच अदर। हाउ वी विल राइट इट? सो लेट्स राइट इट हियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में किसी को किसी के साथ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नेम लिख दीजिएगा, सिमिलर ही होंगे सभी। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACQ, ये है आपके दोनों पेयर ABP और ACQ है। तो ABP और ACQ के अंदर एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAQ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल इज 60 डिग्री। एंगल ABP खुद, और इधर से एंगल ACQ खुद, ये भी कितना होगा 60 डिग्री। वाई सो? बिकॉज ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल बनेगा तो इक्विलेटरल के सभी एंगल 60 होते हैं। तो देखिए मैंने ये लिखा है BAP, ये एंगल 60, ये भी एंगल आपका 60, इधर से AQC में कोई भी दो एंगल्स में तो उसमें A आ गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग C आ गया, तो इन एंगल्स का वैल्यूज आपका 60 है। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और रिजल्ट प्रूफ भी कर सकते हैं। सो ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल ACQ by the property of angle similarity criteria. Now to find the relation between their areas में रिलेशन अगर निकालना है तो रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। Therefore area ABP अपॉन एरिया ACQ, दोनों ट्राइंगल्स के जो एरियाज का रेशियोज है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल है। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के अगर इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में इधर AB आ गया और इधर AC आ गया, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर। तो इधर तो आपका यही फॉर्मेट चल रहा है, एरिया ABP अपॉन एरिया ACQ। अब क्योंकि स्क्वायर के साइड को आपने A लेट किया है, तो लेट ABCD पे स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू A यूनिट। तो यहां पे अब आपको पता है कि इस स्क्वायर के साइड A यूनिट पे आपका ये इक्विलेटरल बन रहा है, सो AB इज आल्सो A यूनिट। And what is the AC? AC, the diagonal that we calculated is the √2a unit. Is it clear? √2a unit. अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप गिवन भी लिखेंगे, तो गिवन में आप लोगों को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और लिखना ही चाहिए। गिवन आपको क्या लिखना है? गिवन में हो गया आपका ट्राइंगल ABCD be a square and triangle equilateral triangle ABP on the side of square and equilateral triangle ACQ on the diagonal। ये दो बातें आपको लिखनी है, ABCD be a square and ABP as an equilateral triangle on side AB and AQC as an equilateral triangle on diagonal AC। क्योंकि अब ABP अगर equilateral triangle है साइड AB पे, तो AB का वैल्यू तो A ही होगा और EC का वैल्यू √2a होगा। सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, a स्क्वायर कट हो गया 1/2 आ गया। यस और नो? 1/2 अगर रिजल्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया? एरिया ABP इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ACQ। जो ABP का एरिया है, जो ABP का जो एरिया है वो ACQ के एरिया का क्या प्रूफ हो गया? हाफ प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? तो ये क्वेश्चन आपका है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल described on one side of a square is equal to the area of an equilateral triangle described on one of its diagonal। इसमें पहले गिवन, उसके बाद में रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना है, इसके बाद आपने साइड को A लेट किया, साइड को अगर A लेट करेंगे तो पाइथागोरस से AC आपका √2a होगा क्योंकि स्क्वायर का साइड सेम होता ही है, तो ये लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया आपका। उसके बाद आपने दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के एंगल्स को 60 बता के उनको सिमिलर प्रूफ कर दिया, सिमिलर बता के उनके साइड्स का रेशियो अप्लाई किया जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के लिए अगर आप काम करते हैं फिर आपका वैल्यू रिप्लेस करने पे a अपॉन √2a दैट इज
1/2. So that is the relation. Is it clear to everyone? Equilateral triangles है, सिमिलर होता है, each angle value is the 60 degree. बहुत इजीली आप इस कंडीशन को, इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं. Is it clear? So all these are the questions based on the properties of the areas of the similar triangle. इसमें सबसे पहले आप एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स के थ्योरम्स के बारे में प्रूफ करवाया जाता है. इसके बाद में इन पे बेस्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो आपसे डिस्कशन किया जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एज अ प्रॉपर्टी इनको डायरेक्ट यूज करना होता है जो आपने डिस्कशन कर ली. ओके, सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द एनसीईआरटी थ्योरम नंबर 6.7. थ्योरम नंबर 6.7. देखिए, थ्योरम नंबर 6.7 का स्टेटमेंट और सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले इसको डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करना सीखते हैं कि किस तरीके से और कैसे परफॉर्म करते हैं. क्वेश्चन में अपने को राइट एंगल ट्राइंगल का ड्रॉ करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड है. तो नॉर्मल कंडीशंस में अपने राइट एंगल ट्राइंगल्स को हमेशा इसी फॉर्मेट पे बनाते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन और उनके बीच में एंगल राइट एंगल. बट राइट एंगल हमेशा इसी कंडीशन में बने ऐसा जरूरी नहीं है. ये तो कंसीडर होता ही है, ये तो सही है ही है. इसके अलावा अगर आप किसी राइट ट्राइंगल को अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट वन इज ऑल्सो करेक्ट. ये भी फिगर आपका करेक्ट है, ये भी फिगर आपका करेक्ट है. अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जब ये फिगर करेक्ट है तो फिर उसको ड्रॉ करने की क्या जरूरत है. तो देखिए, अगर आप उस डायग्राम के थ्रू इस प्रॉपर्टी को समझेंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, सो दैट विल बी द यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर द क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जब ये फिगर आता है तब तो डायरेक्ट ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चंस में ऐसा फिगर आता है या फिर इस फिगर्स के थ्रू आप प्रॉपर्टी समझते हो लेकिन पेपर में ऐसा फिगर आता है, इसलिए मैं दोनों फिगर्स पे वो बेसिक चीज आपको बता देता हूं कि कोई सा भी डायग्राम अगर आप ड्रॉ करते हो या कोई सा भी डायग्राम अगर क्वेश्चन में ड्रॉ किया हुआ है तो किसी तरीके से भी उस प्रॉपर्टी को जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो सीखने जा रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन नहीं. ठीक है. सो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी, व्हाट इज दैट थ्योरम? स्टेटमेंट इज, इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सपोज दैट वी हैव कंसीडर्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, नेमिंग अपनी तरफ से कर दिया, राइट एंगल किसी भी पॉइंट पे अपनी तरफ से मान लिया. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी, what is the condition given as from the vertex of a right angle of a right triangle, from the, if from the vertex of a right angle of right triangle, ये right triangle है, ये right triangle का right angle vertex है. ठीक है. अच्छा, इस right angle triangle के right angle vertex से what we have to draw, we have to draw the perpendicular, we have to draw to the perpendicular to the hypotenuse, we have to draw the perpendicular to the hypotenuse. तो ये AC आपका hypotenuse होता है, yes or no? AC hypotenuse क्यों है? राइट एंगल का अपोजिट साइड hypotenuse है. तो इधर अगर ये फिगर ड्रॉ करते हैं तो ये ABC, राइट एंगल B है, from the vertex of right angle of a right triangle, perpendicular is drawn to the hypotenuse. परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया फ्रॉम राइट एंगल वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज. देन व्हाट द कंडीशन, देन द ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो आपका परपेंडिकुलर लाइन BD है, ये जो आपका परपेंडिकुलर लाइन BD है, देन ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड सिमिलर टू ईच अदर. देन द ट्राइंगल ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्राइंगल एंड सिमिलर टू ईच अदर. तो कैसे प्रूफ करना है वो बाद में बात करते हैं, पहले इस थ्योरम का स्टेटमेंट कॉपी में लिखिए. एक बार पूरा अपने स्टेटमेंट हाथ से लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को समझने में इजी होगा. कंडीशन क्या है थ्योरम का, if perpendicular is drawn, if perpendicular is drawn from the, if perpendicular is drawn from the vertex of a, from the vertex of a right angle of a right angle triangle, क्योंकि देखिए राइट एंगल तो कहीं पे भी बन सकता है लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल का ही राइट एंगल वर्टेक्स होना चाहिए. कंडीशन क्या है, if perpendicular is drawn from the vertex of a right angle of a right triangle to the hypotenuse, to the hypotenuse, if perpendicular is drawn
from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then prove that the triangles formed on both side of the perpendicular, जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो उसकी बात कर रहा है, then the triangles formed on the both side of the perpendicular are similar to whole triangle and similar to each other. तो देखिए ये एज अ थ्योरम्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इस पे डिस्कशन कैसे क्या करना है स्टेटमेंट में एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूं. इफ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल, ये आपका राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल का राइट एंगल वर्टेक्स है, इस राइट एंगल वर्टेक्स से टू द हाइपोटेन्यूज पे आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ठीक है, जैसे आप हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द परपेंडिकुलर. ये आपका परपेंडिकुलर है, तो एक ट्रायंगल परपेंडिकुलर के लेफ्ट साइड बन रहा है और दूसरा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर के राइट साइड बन रहा है. So these two triangles on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and similar to each other. Similar to whole triangle and similar to each other. तो देखिए इस प्रॉपर्टी में सबसे इंपॉर्टेंट पहले है गिवन कंडीशन में इन राइट ट्राइंगल ABC, आपने जिस भी पॉइंट पे राइट एंगल माना है वो लिख दीजिएगा, राइट एंगल एट B. इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड BD, क्योंकि राइट एंगल वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज पे ड्रॉ करना है ये भी आपका गिवन में होगा. नेमिंग क्या करना है वो चॉइस आपकी है, BD लिख सकते हो, BP लिख सकते हो, कुछ और लिखना चाहते हो कुछ और लिख सकते हो. इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B एंड BD परपेंडिकुलर AC. टू प्रूव. अच्छा, ये जो टू प्रूव है ये इतना आसान नहीं है लिखना, मैं आपको बता देता हूं कि टू प्रूव में क्या लिखने वाले हैं. टू प्रूफ के अंदर अपने पास में तीन ट्राइंगल्स पेयर होंगे जिनको अपने को सिमिलर प्रूफ करना है, लेकिन अभी मेरे पास में ऑप्शन नहीं है डायरेक्ट उनको सिमिलर प्रूफ कर, मतलब क्योंकि देखिए सिमिलर प्रूफ करने का मतलब ये हो गया कि जो भी ट्राइंगल्स पेयर आप लिखेंगे उनमें कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट का फॉलो होना जरूरी है. ऐसा नहीं कि मैं रैंडमली इसका कुछ भी नेम लिख दूं कि ABD सिमिलर टू ABC, ऐसा नहीं होता है. पर्टिकुलर सीक्वेंस और जो कंडीशंस है उसको फॉलो करते हुए आपको ऑब्जर्व करना होगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये ट्राइंगल पेयर और ये ट्राइंगल पेयर, तो इन दोनों ट्राइंगल्स पेयर में जब इस पूरे ट्राइंगल्स के साथ सिमिलर रिलेशन बनेगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस जो सीक्वेंस होता है ट्राइंगल्स का नेमिंग होता है वो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए मैंने एक बार लिखा नहीं है, पहले एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझते हैं, डिस्कशन करते हैं कि उन ट्राइंगल्स पेयर्स के नेम कैसे क्या लिखे जाएंगे. तो मेरे को ये पता है कि टू प्रूव में इन थ्री ट्राइंगल्स पेयर को कौन सिमिलर करना है. कौन कौन से? these two triangles pair, these two triangles on both side of the perpendicular similar to whole triangle and similar to each other. ये तीन ट्राइंगल्स पेयर को सिमिलर करना है, सॉरी थ्री ट्राइंगल्स पेयर्स को सिमिलर प्रूफ करना है. कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा स्टार्ट करते हैं प्रूफ से. तो सिमिलर प्रूफ करना है तो ऐसी कोई बात तो है नहीं कि आपको सिमिलरिटी नहीं आता है. वी नो दैट हाउ टू प्रूव टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कैसे, क्या और किस तरीके से करेंगे. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं जो इस परपेंडिकुलर जो BD है आपका, इसके लेफ्ट साइड का पार्ट है. तो लेफ्ट साइड का पार्ट है तो नॉर्मल ट्राइंगल को AD भी कह सकता हूं, ABD कह सकता हूं, DA भी कह सकता हूं, BDA कह सकता हूं, कुछ भी वैलिड है. ठीक है. अच्छा, इस ट्राइंगल पेयर फर्स्ट को जब इस होल ट्राइंगल ABC के साथ सिमिलर करते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस ट्राइंगल को होल ट्राइंगल के साथ सिमिलर करना है क्या उसमें कोई कॉमन एंगल है, क्योंकि जब साइड्स के बारे में कोई रिलेशन नहीं है इसका मतलब वहां पे एंगल प्रॉपर्टी से ही सिमिलर होगा, और वो इसलिए भी ज्यादा कन्वीनियंट होता है इस क्वेश्चन के लिए क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है दो जगह पे,
डी पॉइंट पे भी राइट एंगल और बी पॉइंट पे भी राइट एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ट्राइंगल फर्स्ट पेयर है जब इस सेकंड ट्राइंगल पेयर के साथ अगर सिमिलर होगा, दोनों कंडीशन में जो एंगल ए का पार्ट है वो आपके दोनों ट्राइंगल्स पेयर के लिए कॉमन एंगल है, जो एंगल ए का पार्ट है वो आपके दोनों ट्राइंगल्स पेयर के लिए क्या है, कॉमन एंगल है। इज इट क्लियर? अच्छा, सेकंड पॉइंट पे, इस ट्राइंगल के अंदर एडीबी में डी राइट एंगल पे है और इस ट्राइंगल एबीसी में बी राइट एंगल पे। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल फर्स्ट में राइट एंगल पॉइंट डी पे 90 डिग्री बन रहा है और इस राइट ट्राइंगल में राइट एंगल पॉइंट बी पे 90 बन रहा है। तो देखिए मैं नेमिंग कैसे प्रॉपर वे में कैसे लिख रहा हूं, ए डी बी, ये जो स्मॉल ट्राइंगल है ए डी बी, तो दूसरा जो इसके साथ सिमिलर ट्राइंगल का नेमिंग होगा कॉरेस्पॉन्डेंस, दोनों में एंगल ए कॉमन है तो ए डी बी, तो वहां पे भी ए से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, कई बच्चों को लगता है सर ए डी बी और ए बी सी तो बी भी तो कॉमन होगा, नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए डी बी के अंदर तो ये फिगर है आपका और ए बी सी में आपका ये फिगर है, तो यहाँ पे बी पूरा राइट एंगल काम में आ रहा है और यहाँ पे सिर्फ बी का पार्ट काम में आ रहा है। तो ये जो राइट एंगल है डी पॉइंट पे, ये जो राइट एंगल है डी पॉइंट पे, ये जो है वो आपकी इस बी के साथ, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो इस बी का कोई रोल नहीं है और एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन पार्ट है। सो हाउ टू राइट द सिमिलर नेम, ए डी बी। चॉइस आपकी, अगर मैंने ए डी बी लिखा है तो ए डी बी के कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी आएगा, नेमिंग ध्यान रखिएगा। वर्टेक्स बी को लेके कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ए डी बी में बी का सिर्फ एक पार्ट काम में आएगा लेकिन एबीसी में कंप्लीट बी राइट एंगल काम में आता है। तो प्रूफ के अंदर यहीं से स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन को, तो अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा ट्राइंगल पेयर, फर्स्ट ट्राइंगल पेयर के नेम क्या है, इन ट्राइंगल एडीबी। थ्योरम प्रूफ करना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, एडीबी एंड द अदर नेम ऑफ ट्राइंगल इज एबीसी। सबसे इंपॉर्टेंट सीक्वेंस लिखना ही है, एडीबी में एंगल डीएबी और एबीसी में एंगल बीएसी, दैट इज इन बोथ ट्राइंगल एंगल ए इज यूज्ड एज अ कॉमन एंगल। एडीबी के अंदर एंगल डी आपका 90 डिग्री और एबीसी में एंगल बी आपका 90 डिग्री। सो टू एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, so we can say the whole triangles pair are similar to each other by the property of angle similarity criteria। इसका मतलब जो प्रूफ करना है उसमें पहला ट्राइंगल पेयर हो गया आपका कौन सा, ट्राइंगल एडीबी। आपको प्रूफ करना है सिमिलर किसके साथ, ए बी सी के साथ। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा वाला भी अब समझ में आ गया होगा आपको कि यह आपका सेकंड ट्राइंगल पेयर है, दैट इज द नेम सीबीडी, सीडीबी, बीडीसी, जो भी आप लिखते हैं। तो ये जो आपका सेकंड ट्राइंगल पेयर है, इसमें जो आपका एंगल सी है और जो होल ट्राइंगल नेम है उसमें जो एंगल सी है, दोनों में कॉमन रोल प्ले कर रहा है। और वही सेम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल पॉइंट में डी पे राइट एंगल है और इस होल ट्राइंगल में ट्राइंगल बी पे राइट एंगल है। तो सेम इसी तरीके से अगर उस ट्राइंगल के नेम को लिखने की ट्राई करें तो ट्राइंगल सी डी बी, सी डी बी सिमिलर प्रूफ होगा किसके साथ, सी बी ए के साथ। क्यों होगा सी डी बी सी बी ए के साथ सिमिलर, तो सेकंड पार्ट के लिए मेरे पास में कोई अलग से स्टेटमेंट तो है नहीं, वही कंडीशन है, ट्राइंगल का नेम है सी डी बी एंड ट्राइंगल सी बी ए। सी डी बी और सी बी ए में कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे सी डी बी और सी बी ए, सबसे पहले एंगल सी को ही आप इक्वल बताएंगे क्योंकि वो आपका कॉमन है। तो दोनों में आपने सी को सेंटर में रखते हुए एंगल का नेम लिखा, दैट इज द कॉमन एंगल। क्लियर? सेकंड वन इज एंगल डी पे राइट एंगल है और इसमें एंगल बी पे राइट एंगल है, तो सी डी बी इज इक्वल टू सी बी ए राइट एंगल। सो फाइनली वी कैन से ट्राइंगल सी डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ए by which property, by the angle similarity criteria। Is it clear to each other? CDB is similar to CBA angle similarity criteria। तो ये तो हो गए बड़े इजी तरीके से कि जो दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं परपेंडिकुलर्स के साइड्स में, जो परपेंडिकुलर्स के दोनों साइड्स जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, these are similar to the whole triangle। अच्छा, जब होल ट्राइंगल्स के साथ आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो अब क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ करना है दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। जब होल ट्राइंगल्स के साथ आपने सिमिलर प्रूफ कर ही दिया तो अब आपको प्रूफ करना है सिमिलर टू ईच अदर। तो अब मेरी बात देखिएगा ध्यान से, ये जो ट्राइंगल्स पेयर आपने सिमिलर प्रूफ किया है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है,
अच्छा, ये जो ट्राइंगल पेयर प्रूफ किया है ये आपका इक्वेशन नंबर, सॉरी वो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो अब कंडीशन क्या है, जो तीसरा ट्राइंगल पेयर सिमिलर करना है आपको, कौन कौन सा, फर्स्ट और सेकंड को। अभी फर्स्ट को होल ट्राइंगल के साथ, सेकंड को होल ट्राइंगल के साथ, अब फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, इफ, जैसे देखिए आपने 9th में यूज किया था, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू वन कॉमन ट्राइंगल, if two different triangles are congruent to one common triangles, then these two triangles are congruent to each other। जैसे दो पार्ट्स अगर किसी एक ही वैल्यू के कॉमन वैल्यू के अगर इक्वल होते हैं, देन ऑल थ्री विल बी इक्वल टू ईच अदर और these two will be equal। ऐसे बोलते हैं ए और बी अगर किसी वैल्यू सी के इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब ए और बी भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यही प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी में लगता है, यही प्रॉपर्टी सिमिलरिटी में भी लगता है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू वन कॉमन ट्राइंगल, if two triangles are similar to one common triangle, then both triangles are similar to each other। लेकिन प्रॉब्लम एक ही बात पे आएगी कि जो कॉमन ट्राइंगल्स है उसका नेम सेम होना चाहिए, जो कॉमन ट्राइंगल है उसका नेम सेम होना चाहिए। अब देखो नेम सेम होने का मतलब क्या हो गया कि एडीबी के साथ सिमिलर है एबीसी, लेकिन अपने ने जो नेमिंग लिखा है उसके हिसाब से सीडीबी सिमिलर है सीबीए के साथ, तो एबीसी और सीबीए। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स पेयर को आपस में सिमिलर करना होगा तो इनके कॉरेस्पॉन्डेंस सीक्वेंस पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना है कि एडीबी के साथ अगर एबीसी है तो इस ट्राइंगल के साथ भी एबीसी का ही रिलेशन हो। अगर इसको एबीसी के साथ और इसको सीबीए के साथ आप देखेंगे ये दोनों डायरेक्ट ये कॉरेस्पॉन्डेंस एडीबी और सीडीबी सिमिलर हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो मैं क्या चेंज कर रहा हूं देखिएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स पेयर में फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 में आपने क्या प्रूफ किया, क्या है ट्राइंगल का नेम, सी डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीए। देखिए मैंने स्टार्टिंग में प्रूफ ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन याद रह सके कि नेमिंग कैसे लिखा जाता है, कि जब भी इस स्मॉल ट्राइंगल को होल ट्राइंगल के साथ सिमिलर करते हैं, वन कॉमन एंगल, देन राइट एंगल एंड देन द थर्ड वर्टेक्स, अगेन कॉमन एंगल, राइट एंगल, देन द थर्ड वर्टेक्स। तो इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि किसी भी राइट एंगल के अंदर जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनस पे, जो स्मॉल ट्राइंगल होल ट्राइंगल के साथ सिमिलर होता है उसका सीक्वेंस कॉमन एंगल, राइट एंगल, थर्ड वर्टेक्स, दोनों ट्राइंगल के लिए अगर ऐसा लिखोगे बहुत इजी तरीके से उसको स्मूथली तरीके से आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें काम तो ये कर ही सकते हैं कि सीडीबी अगर सिमिलर है सीबीए के साथ, तो मेरे को पता है कि जो मेरे को सीबीए की जगह नेम चाहिए एबीसी। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन 1 में ट्राइंगल स्मॉल एबीसी के साथ सिमिलर है, तो मैंने अब क्या किया, सीबीए के सीक्वेंस को एबीसी कर दिया, सीबीए एबीसी। समझ में आ रहा है, उल्टा हो गया। तो सीबीए का अगर एबीसी कर किया तो इसका मतलब एबीसी के साथ इसका जो नेमिंग बनेगा वो क्या बनेगा, बीडीसी बनेगा। दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। मैंने कुछ नहीं किया है, ट्राइंगल वही है, सिर्फ उनके कॉरेस्पॉन्डेंस नेम को चेंज किया है। एक का चेंज होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस दूसरे का तो नेम चेंज होगा। ये थोड़ी है कि इसको तो सीडीबी लिख दो और इसको वापस से एबीसी लिख दो, नॉट पॉसिबल, वो गलत हो जाएगा। सीडीबी सीबीए के साथ अगर सिमिलर है तो एबीसी जो है वो बीडीसी के साथ, सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस किस वर्टेक्स के साथ कौन सा वर्टेक्स रिलेशन बनाएगा वो आपका हो गया। तो अब आपके पास में, अब आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर आप कंपेयर करते हैं, देन वी विल गेट व्हाट वी विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ऑब्जर्व हियर, ADB similar to ABC, BDC similar to ABC, so we can write triangle ADB, triangle ADB is similar to triangle BDC. And what the property we will write here, if two triangles are similar to, one common triangle, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है किसके साथ, if two triangles are similar to one common triangle, then both of them will be similar to each other।
ये कंडीशन वहां पे आपको लिखना है क्या, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू वन कॉमन ट्राइंगल देन बोथ ऑफ देम विल बी सिमिलर टू ईच अदर. सो व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी, जो थर्ड ट्राइंगल पेयर जिनको आपको सिमिलर करना था वो आपका ट्राइंगल नेम है ADB और ADB के साथ सिमिलर होगा BDC. So that is the third pair of the triangle ADB similar with BDC. ADB similar with BDC. तो ये तीनों ट्राइंगल्स नेम आपको बहुत अच्छी तरीके से लिखना आना चाहिए. जो इस प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या, that if from right angle vertex if we will draw the perpendicular to the hypotenuse then both triangles on the both the triangles on the each side of the perpendicular are similar to the whole triangles and similar to each other. correspondence naming important है जो इस तरीके से, क्योंकि प्रूफ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ तो बहुत इजी है, वन कॉमन एंगल एंड वन राइट एंगल, वन कॉमन एंड वन राइट ट्राइंगल, दोनों जो एक ही कॉमन ट्राइंगल के साथ अगर सिमिलर है सो बोथ विल बी सिमिलर टू ईच अदर. But the important part is to write the sequence, to write the correspondence name, that for the small triangle with whole triangle, common angle, right angle, third vertex, that correspondence common angle, right angle, third vertex. फिर again second part के लिए common angle, right angle, third vertex, common angle, right angle, third vertex. Okay? So this one is the proof of the theorem 6.7. In the next class, on the basis of this property, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने प्रूफ करेंगे क्या, पाइथागोरस थ्योरम एंड द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम. टिल देन टेक केयर. थैंक यू स्टूडेंट्स.